Hello everyone. Today I am going to explain a beautiful poem that is Father to Son, which has written by Elizabeth Jennings. The full name of Elizabeth Jennings is Elizabeth John Jennings. Elizabeth John Jennings was a popular poet in England and published a great number of works. The poem Father to Son is an autobiographical poem of Elizabeth Jennings. It describes an exclusively personal experience. However, its appeal is fairly universal. Both the father and the son are poles apart. There is a generation gap between the two. They think and live differently. They have become strangers to each other. In spite of an urge for reunion, the separation continues and can't be helped. I have divided this poem into four important parts or four important points for your better understanding. And the four important points and parts are: firstly, no understanding between them; secondly, strangers to each other; thirdly, father wishes the return of his son; and fourthly, mutual desire to come closer. Here in this poem, father is unhappy and father cannot understand his own child. They have lived under the same roof for years, but still he knows nothing about his child. He wants to build up a relationship with his son. Giving birth to such a son is like sowing the seed in the land that was not his own. The child has taken after his father physically, but what he loves and likes, the father doesn't share them. The father wishes his prodigal son, that means extravagant son, would come back home. He knows his father's house quite well. The father is ready to forgive his son. In spite of deep differences between them, both of them must live in the same world, and father's grief gives birth to anger. There is a mutual desire to come closer, but the gap stands as it is. Now I am going to explain the poem stanza wise, line wise in Hindi for your better understanding. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. In the first stanza, father is saying, father यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं अपने जो चाइल्ड है मैं उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाता हूँ। भले ही हम एक ही छत के नीचे बरसों से एक ही घर में एक साथ रह रहे हैं, फिर भी मैं अपने चाइल्ड को, बेटा को मैं जान नहीं पाया, समझ नहीं पाता हूँ। I know nothing of him. मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता. So try to build up a relationship from how he was when small. तो अभी मुझे इसीलिए उसके बारे में मुझे जानना है और मैं इसीलिए जानने की कोशिश करता हूँ, और मैं इस रिलेशन को, फादर और सन के जो बीच में जो रिलेशन होता है नेचुरली, उस रिलेशन को फिर से बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक पिता और एक बेटे के बीच बचपन में जैसे रिश्ता रहते हैं। जब मेरे चाइल्ड, फादर कह रहे हैं, जब फादर के सन बचपन में जब वो छोटा था और तब उस बेटा के साथ फादर का जो भी रिश्ता था, ठीक वैसे ही रिश्ता, वैसे ही रिलेशनशिप फादर फिर से करना चाहते हैं, और इसीलिए फादर कोशिश कर रहे हैं. सो ट्राई टू बिल्ड up a relationship from how he was when small. Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his, and
and none of mine. यहाँ पे फादर ने बोला जैसे कि कोई अगर कोई बीज बोते हैं तो उसी बीज से उस बीज का ही वो पौधे निकलते हैं, जो उस सीड का ही पौधे निकलते हैं। लेकिन फादर बोल रहे हैं कि मेरे चाइल्ड का जो बिहेवियर है वो इतना डिफरेंट है, मुझे कभी लगता ही नहीं कि ये मेरा ही बच्चा है। बचपन में सब कुछ ठीक था, मैं बहुत ही तकलीफ से, बहुत ही केयर से इसका नरिशमेंट किया, जैसे कि बच्चे को छोटे से बड़ा करने में माता पिता का बहुत ही तकलीफ उठाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, केयर करना पड़ता है, लव, अफेक्शन, सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे फादर ने भी ठीक वैसे किया जैसे लाखों माता पिता करते हैं। तो अब फादर बोल रहे हैं कि मेरे जो बेटा है, मैं उसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये मेरा बेटा है ही नहीं। जैसे अगर कोई बीज बोते हैं तो उसी बीज का उसी पौधे होते हैं, तो पौधे देखकर लगता है ये उसी सीड से हुआ होगा। लेकिन ये मेरा जो चाइल्ड है ये बिल्कुल ही मुझसे अपोजिट है, क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, एंड वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। हम दोनों के बीच में कोई भी समझदारी नहीं है, समझ नहीं है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। समझदारी और समझ नहीं है इन द सेंस कि वो बाप बेटा को नहीं समझ पाते, बेटा बाप को नहीं समझ पाते, एंड वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, और हम अजनबियों की तरह बात करते हैं, रहते हैं, जैसे एक दूसरे से तो बात नहीं करते। जैसे मैं अपने बेटे के बारे में मैं अकेले अकेले बोलते रहती हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, अजनबी जैसे बिहेव करते हैं। And this child is built to my design, yet what he loves I cannot share. And finally मैं ये कहना चाहता हूँ, फादर हमें बोल रहे हैं, फादर ये कहना चाहता है कि फादर को ये भी पता नहीं है कि बेटा को, अपने चाइल्ड को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। मतलब अपने चाइल्ड के लाइक और डिसलाइक के बारे में भी फादर को पता नहीं, क्योंकि बेटा फादर के साथ ये कुछ भी शेयर नहीं करता। स्टैंजा नंबर 3, Silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. देखो, हम दोनों के चारों ओर, फादर और चाइल्ड के चारों ओर क्या है, साइलेंस है, कम है, क्योंकि एक दूसरे के साथ बात नहीं करते। जब दोनों एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं तो एक दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं होते, तो इसीलिए क्या होते हैं, पूरा वीरान सा होते हैं, शांत सा होता है, और वो चारों ओर सिर्फ और सिर्फ साइलेंस रहते हैं। तो इसीलिए कहा साइलेंस सराउंड अस। I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. फादर ने बोला, फादर की जो बेटा है, जो चाइल्ड है, वो अपने ही दुनिया में, अपने ही गति में वो धुन है, अपने ही दुनिया में वो गुम है। वो अगर फादर के घर में वापस आते और फादर के पास वापस आते और फादर के साथ जो रिश्ता है उसको बिल्ड अप करते, मतलब फादर, वो लोग एक छत के नीचे तो रहते हैं लेकिन अजनबियों की तरह रहते हैं। अगर वो लोग एक छत में एक रूफ के नीचे जब वो लोग रहते हैं, वो लोग फैमिलियर और फादर और सन की तरह अगर रहते, तो उन दोनों के बीच में जो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस रहते। तो फादर इसलिए बोल रहे हैं कि अगर वो मेरे पास वापस आता, तो यह हिज फादर्स हाउस, मतलब फादर के पास वापस आते और ये जो रिलेशनशिप है उसको रिबिल्ड करते, तो क्या होते, दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख के बारे में जानते हुए, शेयर करते हुए, एक फादर और सन की एक अलग सा दुनिया बनाते और उस दुनिया में खुश रहते। लेकिन यहाँ पे सन जो है, सन अपने ही दुनिया में, अपने ही
गति में, अपने ही खुशियां में वो गुम हैं। वो फादर के बारे में वो कोई केयर नहीं करते और फादर के बारे में कुछ जानते भी नहीं है। एंड फादर ने बोला अगर वो वापस आते हैं फादर के पास तो फादर रेडी है फॉरगिव करने के लिए, रेडी है सब कुछ भुलाकर दुख को, जितना पैनिक कंडीशन है उन दोनों के बीच में, पैनिक सिचुएशन थे उन दोनों के बीच में या फिर अभी भी है, तो उन सारे बातों को भूलते और नए जो रिश्ता बनते वो सब कुछ भूल के माफ करके वो एक दूसरे के साथ खुश रहते। ये फादर हमें बोल रहे हैं। और फादर अपने बेटे को यहाँ पे स्टैंजा 3 लाइन नंबर 2 में बोला है कि प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब होता है एक्स्ट्रा वैगेंट, जो फिजूल खर्च करते हैं उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट। जिनमें थोड़ा ईगो इशू भी ज़्यादा होते हैं उनको भी प्रोडिगल कह सकते हैं, और फिजूल खर्च जो करते हैं उनको भी प्रोडिगल कह सकते हैं। मेक एंड मूव का मतलब है बिल्ड एंड कंट्रोल, एंड शेपिंग जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है इसका मतलब है गिविंग फॉर्म टू, मतलब रूप देना, शेप देना। ठीक है। Now last stanza, stanza number 4. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand longing for something to forgive. Father ने बोला, father and son, we both must live on the same globe, same land. हम भले ही एक जमीन के ऊपर रहते हैं, एक दुनिया में रहते हैं, लेकिन he speaks I cannot understand, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, एक दूसरे के लाइक डिसलाइक के बारे में कुछ नहीं जानते, हम एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते। इसीलिए फादर ने बोला, in spite of all these differences, the father and the son must live in the same world and on the same earth, and the father can't understand when what the son speaks to him, nor can he understand why his grief is turned into anger. Both of them try to come closer and fill up the gap that separates them. यहाँ पे फादर जो है, फादर बोल रहे हैं हम एक दुनिया में रहते हैं, एक ग्लोब में रहते हैं, एक सेम लैंड में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो क्यों ना हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा एक साथ ही रहना चाहिए, एक साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए, और तभी हमें एक दूसरे को ज़्यादा जब वक्त बिताएंगे एक दूसरे के साथ, तब हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करना चाहिए। अगर हम ऐसा करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तब हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है धीरे धीरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे, और धीरे धीरे हम एक दूसरे के कंपनी बन सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम खुश रह सकते हैं, और अनफैमिलियर से हम फैमिलियर बन सकते हैं। जैसे बचपन में जो रिश्ता था, जब बेटा जो चाइल्ड थे, बच्चा था, और वो उसके बचपन में जो फादर के साथ जो बॉन्डेज थे वो रिलेशनशिप फिर से बन सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन ये जो रियल दुनिया है, रियल दुनिया में फादर और सन के बीच में कोई बात नहीं है। और ये जब भी यहाँ पे इस कविता में फादर ये पेनफुल बातें फिर से याद करते हैं, अपना पैनिक सिचुएशन के बारे में फिर से याद होते हैं, दुख के बारे में जब जब याद होते हैं, तो इनका जो दुख है, ये दुख क्या होते हैं, गुस्से में ट्रांसफर हो जाते हैं। दैट मीन्स ही अंडरस्टैंड व्हाई हिज ग्रीफ इज टर्न्ड इनटू एंगर, और ये जो ग्रीफ है, ग्रीफ गुस्से में परिणत हो जाते हैं, और यही कारण है कि गुस्सा जो उनका जो दुख है, दुख गुस्सा बन जाते हैं, क्योंकि फादर उन दोनों के बीच में जो गैप है, सेपरेशन जो है, उनको कम करने के लिए, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है उनको ठीक करने के लिए, उनका एक दूसरे के लाइक डिसलाइक को जानने के लिए, उनके रिलेशनशिप को फिर से बनाने के लिए चाइल्ड जो है उसको भी कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन फादर कोऑपरेट करना चाहते हैं, फादर माफ़ करना चाहते हैं, लेकिन चाइल्ड शायद रेडी नहीं है, क्योंकि वो फादर के सामने नहीं आते और
कुछ बोलते नहीं हैं। And finally, last two lines, we each put out an empty hand longing for something to forgive. फिर फादर ने बोला, both extend their empty hands to the other. हम एक दूसरे के हाथ पकड़ लेना चाहिए, जो एम्प्टी हैंड्स दोनों को हाथ बढ़ाना चाहिए। रिश्ता जो बिल्ड करने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए दो तरफ से हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। Both of them are in search of some excuse to forgive each other. तो दोनों ही एक कोशिश में लगा है, जैसे कि उनको कोई मौका मिले और वो झट से माफ कर दे। तो अगर दोनों तरफ से ये कोशिश, माफ करने का कोशिश होते, तो ये रिश्ता पहले जैसे हो सकते थे। बट दे कांट हेल्प बीइंग व्हाट दे आर। लेकिन फादर तो चाहते हैं माफ करना, लेकिन सन के बारे में कोई पता नहीं, तो इसीलिए शायद फादर को एक बार के लिए फादर को ये भी लगता है, शायद चाइल्ड जो है उसको, बेटा जो है वो शायद फादर की तरह सोचता होगा, वो बोलने की कोशिश करता होगा, लेकिन उसको ये पता नहीं कहाँ से शुरू करे, क्या बोले। तो ये फादर ने हमें कहा कि शायद ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा है तो हम दोनों मिलकर अगर कोशिश करें सब कुछ ठीक हो सकता है। इस कविता में फादर एक्चुअली बहुत दिल से चाह रहे हैं कि ये संपर्क जो है, जो भी रिलेशनशिप है, उसको रिबिल्ड करे और एक साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताए। तो इस कविता के ज़रिए, इस पोइम के माध्यम से एलिजाबेथ जेनिंग्स ने बताया कि हमें फादर के साथ, हमारे अपने पेरेंट्स के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो हमें एक साथ बैठ के सुलह करना चाहिए, ना कि हम एक्स्ट्रा वेगन होना चाहिए, ना कि हम ईगो लेकर हम अपने आप में व्यस्त रहना चाहिए। क्योंकि हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें बहुत समय दिया जब हमें कुछ करना नहीं आता था, और जब हम एबल हो गए, यंग हो गए, तो हमारे ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पेरेंट्स को उतना ही सपोर्ट करें और उनके सपोर्ट बन के हम उनके साथ खड़ा रहे। So this much is all about the poem. Thank you.